Hello everyone, I welcome to this channel again, and in this lecture we are going to do composition scheme. ठीक है? Composition scheme, okay. So basically composition scheme is prescribed in section 10 of CGST Act, and some another scheme is also there which is mentioned in section 10 2A of CGST Act. Okay, so these two sections are the major focus in this lecture. Along with that, there are some rules which we are going to see. So what is the meaning of composition scheme? Okay, so there are two types of taxpayers who are going to pay taxes to the government. One are the normal suppliers. Okay, normal suppliers means whom? Those who will collect taxes from the recipient and pay to the government. Okay, and will avail full ITC. And another type of person are composition person. Who are those? Composition person. Composition, and I call the another scheme person as a presumptive scheme person. You can call it as a new composition person or another scheme, any kind of, but in this lecture we are going to refer them as presumptive scheme. So there are these two types of the supplier are there. What these are going to do? Collect tax from recipient, avail ITC, and pay. Okay, composition scheme person are not eligible to collect taxes, from their recipients. Okay, so they are not going to collect any taxes, they are going to pay tax from their own pocket on the total turnover in the state. We are going to see in detail, so don't worry, just an overview I am giving over here. They are not eligible to claim ITC on their purchases, if any. Okay, so why anyone would go in composition scheme? What are the benefits? I said two negative points. One negative point is they cannot collect taxes. Another negative point is they cannot claim ITC. Okay, so with some negative points, there will be some positive points as well. The positive points are as follows, which I am writing in the green pen. Wait one second. One second. Okay. So positive points are as follows. First one, less compliance burden. Less compliance burden. Okay. Normal person has to pay taxes monthly. Okay. Now a scheme QRMP has been announced, which is not applicable for your syllabus. In that they are paying quarterly. But composition scheme person, right from the July 2017, he is paying quarterly taxes. Okay, so there is less compliance. Tax payment is quarterly. Comma, only one return, that is GSTR 4, which is to be filed by 30th April of the next financial year. Okay, so these are only the two compliances, and monthly GST CMP 08 named statement has to be filed. Okay, only this much compliance is there. Second positive point is less rate of tax. Meaning thereby, normally the tax rates are 18%, 28%, 12%, such the higher rates are there. But for composition person, the maximum tax rate is 5%. Okay, in presumptive scheme it is a 6% rate. We'll be learning that. Third benefit of composition scheme is less maintenance of accounts and records. In simple words, they are not required to maintain tax and stock details. Which two details? It can come in MCQ. Which two details composition person are not required to make? First one, tax detail. Second one, stock detail. Okay, there are many questions in accounts and records chapter, that which are the types of records which are not to be maintained by composition person. So these are the two records. Okay, so these are the basic positive points we can say for composition scheme, and these are some negative points for the composition scheme. Okay, so I think positive points are more. So it is a kind of beneficial scheme. So government will not give this much benefit to everyone. Government will not give
this much benefit to everyone. Okay, there shall be certain conditions, there shall be certain restrictions for composition person. The first kind of condition for composition scheme is a aggregate turnover limit. Is a aggregate turnover limit. Okay, and there are certain type of eligible suppliers. Okay, not everyone is eligible for composition scheme. There are some person who are not eligible for composition scheme, and that ineligibility list is provided in section 10.2, which we are going to see now. Ineligible suppliers. Okay, is it very clear? There is a condition of aggregate turnover, that your turnover in preceding financial year should not exceed this much figure. If it is exceeding this much figure, then you have to go for normal scheme. Okay, so in current year also, if you are crossing this turnover, you have to go for normal scheme. Okay, so there is some aggregate turnover limit. I will discuss it in detail. Just I am giving you the brief introduction of composition scheme right now. Ineligible supplier means there are few suppliers who cannot opt for composition scheme. Okay, we will study the list of those suppliers. Also, as per rule 5, there are few restrictions, or we can say few conditions, which are to be complied with the with rule 5, so that to opt for composition scheme. Clear? So let us go to the charts now. Okay, you can see the chart. The first thing which you have to check is not the aggregate turnover. Please remember, first you have to check whether a supplier is eligible for that scheme or not. ठीक है, सबसे पहला आपको चेक करना है कि सप्लायर एलिजिबल है कि नहीं. अगर सप्लायर ही एलिजिबल नहीं है तो ये टर्नओवर देख के कोई मतलब ही नहीं बनता है. सो हम लोग सप्लायर का जो चीज़ें हैं, दैट इज विच आर दोस इन एलिजिबल सप्लायर, वी आर गोइंग टू स्टडी इन फर्दर लेक्चर. ओके, बट आपको याद रखना है कि सबसे पहला आपको क्या चेक करना है, क्या चेक करना है, सप्लायर एलिजिबल है या नहीं. if he is an ineligible supplier, then there is no point, in determining aggregate turnover. एग्रीगेट टर्नओवर हमें तभी देखना है जब भी सप्लायर एलिजिबल है. ओके, सो कंसीडरिंग द फैक्ट दैट सप्लायर इज एलिजिबल, वी आर स्टडीइंग दिस एग्रीगेट टर्नओवर. ओके, याद रखना, हम अजम्पशन लेते हैं कि सप्लायर एलिजिबल है, उसके बाद ही हम चेक कर रहे हैं. सो एज आई सेड दैट दिस बेनिफिट इज नॉट फॉर एवरीवन. कंपोजिशन स्कीम बेनिफिट इज नॉट फॉर एवरीवन. ओके, सो बेनिफिट किनके लिए है, अगर वो एलिजिबल है तो, एंड देयर एग्रीगेट टर्नओवर in the preceding financial year, okay, is up to 1.5 cr in these states and up to 75 lakhs in these states. मतलब अगर आपका टर्नओवर 1.5 cr पिछले साल क्रॉस कर जाता है इन स्टेट्स में, then you are not eligible for composition. If your turnover is less than or equal to 1.5 cr in these states, you are eligible for composition scheme in current year. I hope you are getting the point. Okay, next point, if your turnover is below 75 lakhs in preceding financial year, not current, preceding financial year, then then you are eligible for composition scheme in these states. Which are these states? Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura and Uttarakhand. Okay, you can remember it. There is no point in making mnemonics to remember it. You can just remember it by repeating it once, twice or thrice. तो नॉर्मली 1.5 सीआर का लिमिट है, कुछ स्टेट्स के लिए 75 लाख का लिमिट. अब किसका लिमिट है ये, एग्रीगेट टर्नओवर का. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर. ओके, वी विल बी डिकोड द ईच एंड एवरी पॉइंट ओवर हियर. सी, पहले हम एग्रीगेट टर्नओवर समझेंगे, देन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का रेलेवेंस बताऊंगा. ठीक है, इसमें क्या एड लेस करना है वो भी हम सीखने वाले. चलो, इन केस ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर आपको क्या ऐड करना है, क्या नहीं करना है, वो देखते हैं. एग्रीगेट टर्नओवर, सबसे पहला एग्रीगेट का मीनिंग समझो. एग्रीगेट मीन्स ऑल ओवर इंडिया पैन बेसिस. ऑल इंडिया पैन बेसिस, इसका मतलब होता है एग्रीगेट. ठीक है, मतलब आपका अगर एंटिटी महाराष्ट्र में है और गुजरात में भी है, तो उन दोनों के टर्नओवर का टोटल करेंगे टू डिटरमाइन दिस एग्रीगेट टर्नओवर. इफ एग्रीगेट टर्नओवर इज लेस देन द अबव लिमिट, देन यू आर एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन करंट ईयर. ओके, सो अब एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड करना है वो चेक करते हैं. इट इज मेंशन्ड इन सेक्शन 2(6) ऑफ CGST. all taxable supplies, all taxable supplies,
एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम, ठीक है। सब टैक्सेबल सप्लाईज, मतलब टैक्सेबल सप्लाईज पर जीएसटी जो सप्लायर पे करता है वो सारे टैक्सेबल सप्लाईज आपको ऐड करना है, पर ऐसा इनवर्ड सप्लाईज आपको ऐड नहीं करना है जिसपे आरसीएम में आप टैक्स पे कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पर एक्सक्लूजन का कारण क्या है? क्योंकि आरसीएम इनवर्ड पे भी आप टैक्स पे करते हो और आउटवर्ड टैक्सेबल पे भी आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। पर आरसीएम इनवर्ड इज योर परचेज एंड नॉट योर सेल, इट इज नॉट योर सप्लाई, इट इज योर परचेज, दैट इज इनवर्ड सप्लाई है वो। तो इसीलिए आरसीएम इनवर्ड को यहाँ पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, ठीक है। However, if you are providing such a service which is taxable under RCM, then you have to add it. Is it very clear? Is it very clear? समझा? फॉर एग्जाम्पल आप लोग कोई ऐसा सर्विस देते हो जो टैक्सेबल है आरसीएम में, मीन्स आपका रिसिपिएंट इज गोइंग टू पे टैक्स, then that supply has to be added. But if you are availing such service on which you are going to pay tax under RCM, that is not to be added. Then all exempt supplies are to be added. All exempt supplies are to be added. But this exempt supply by way of interest and discount is not to be added. Interest discount का जो exempt turnover होगा उसको आपको add नहीं करना है, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वन, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज आपको ऐड करना है, इवन इफ इट इज अ जीरो रेटेड यू हैव टू ऐड इट। इंटर स्टेट सप्लाईज आपको ऐड करना है। अब काफ़ी बच्चों का डाउट ये आता है कि इंटर स्टेट सप्लाई जो है, अब आगे हम देखने वाले हैं कि इंटर स्टेट सप्लाई इज इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो यहाँ पर अपन ऐड क्यों कर रहे हैं? तो आंसर इज जो नीचे इंटर स्टेट सप्लायर का इनएलिजिबिलिटी है, इट इज़ फॉर करंट फाइनेंशियल ईयर, ओके। आप एक बार कंपोजिशन में आ जाते हो तो आप इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं कर सकते, ठीक है। पर अगर आपको एग्रीगेट टर्नओवर कंप्यूट करना है तो पिछले साल तो आपने किया होगा, क्योंकि पिछले साल ये रेस्ट्रिक्शन थोड़ी था, पिछले साल आप कंपोजिशन में ही नहीं थे, देयर वाज नो रेस्ट्रिक्शन। सो इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स हो अगर आप पिछले साल में, सो इट इज़ बट ऑब्वियस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आई एम टेलिंग नाउ, इज बट ऑब्वियस कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड रहोगे। वाई? एज पर सेक्शन 24 इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स इज कंपल्सरीली लायबल टू बी रजिस्टर्ड। मतलब अगर आप पिछले साल इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे थे, मतलब आप जीएसटी के दायरे में थे पहले से, यू आर ऑलरेडी इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी इन प्रीवियस ईयर, ओके, बट योर टर्नओवर इज नॉट एक्सीडिंग 1.5 CR, okay, and you are having a burden of compliance, so you are thinking to go to composition scheme, ऐसा समझो इसको। So all taxable supplies to be added, exempt supplies to be added, excluding interest discount. Export of goods, services, interstate. What is the meaning of export of goods? Export of goods means taking goods outside India. India के बाहर goods जा रहा है, that is called as export of goods. What is the meaning of export of services? Export of service means 5 conditions to be fulfilled. Condition number 1, supplier should be in India, recipient outside India, place of supply outside India, not merely establishment of distinct person, clear है, and amount to be received in convertible foreign currency or the mode as prescribed by RBI. Is it very clear? These 5 conditions are to be fulfilled for determining the service as export. सारी export service add होंगी. Export is a zero rated supply. Also one more thing, export is a interstate supply. Export is a interstate supply. So अगर आप पिछले साल एक्सपोर्ट कर रहे थे तो आपने कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया ही होगा। वाई? बिकॉज इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, क्लियर है, एंड एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स इज अ इंटरस्टेट सप्लाई, तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, आपने लिया होगा, क्लियर है। तो दिस इज व्हाट वी आर कंक्लूडिंग नाउ। एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या ऐड होगा? ऑल टैक्सेबल सप्लाईज एक्सक्लूडिंग इनवर्ड आरसीएम, बट आउटवर्ड आरसीएम हैज टू बी एडेड। Exempt supplies to be added, but interest discount turnover is not to be added. Export of goods services आपको ऐड करना है, इंटरस्टेट सप्लाई भी ऐड करना है। CGST, SGST, सेस इसको ऐड नहीं करना है। अब एक बात ध्यान देना, काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक ये करते हैं, अगर एडेड है ही नहीं तो आपको इग्नोर करना है, ये आप भूल जाते हो। आप लोग क्या करते हो, इसमें एडेड नहीं होता आप उसको माइनस भी करते हो। माइनस क्यों करना है? माइनस तभी ही करना है जब एडेड है। For example, if I am telling 112 is inclusive of GST ₹12, okay, so now you have to subtract ₹12 and arrive at 100. But if I am saying that 100 is the turnover excluding ₹12 as CGST, SGST, you are not required to reduce this 12. You are not required to reduce 12. Already this 100 was excluding GST, so why are you bothering to reduce it? Is it very clear? So aggregate turnover to be considered of which year? Preceding financial year. ध्यान रखना, कंपोजिशन स्कीम में ही प्रीसीडिंग वर्ड यूज किया है। इन सेक्शन 22
देर इज नो यूजेज ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। सेक्शन 22 में करंट ईयर का भी अगर आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है या 40 लाख जाता है, यू आर लायबल टू रजिस्टर, ओके। बट कंपोजिशन स्कीम में ही ये प्रीसीडिंग वर्ड्स यूज किया गया है। क्लियर है, समझ में आया? नाउ वी विल स्टडी हु आर द इनएलिजिबल सप्लायर्स। हु आर द इनएलिजिबल सप्लायर्स? सो इनएलिजिबल सप्लायर में सबसे पहला नॉन टैक्सेबल गुड्स जो बेच रहा है, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो बेच रहा है वो पर्सन कंपोजिशन में नहीं आ सकता। क्लियर है? नेक्स्ट वन, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स। अभी यहाँ पर सब लोग का डाउट आता है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स मीन्स जो पर्सन इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है वो करंट ईयर में नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मत समझना कि अगर आपने पिछले साल किया तो आप अभी नहीं आ सकते, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आपको 2 साल तक वेट करना पड़ता कंपोजिशन में आने के लिए। ठीक है, एक साल इंटर स्टेट किया तो ठीक है, अगले साल में नहीं करूंगा तो उसके अगले साल में आ सकता हूँ, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट द केस, इट इज़ नॉट एट ऑल द केस। ठीक है, इंटर स्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स जो सप्लायर करंट ईयर में इंटरसेट करना चाहता है वो कंपोजिशन में नहीं आ सकता, पर अगर प्रीसीडिंग ईयर में किया है तो आप आ सकते हो। बट इट इज़ अ कंडीशन ऑफ कंपोजिशन स्कीम कि आपको ये साल नहीं करना। इट वेरी क्लियर। नेक्स्ट वन, सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गुड्स की बात चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम सेलिंग टाइटन वॉचेस फ्रॉम ई कॉमर्स ऑपरेटर अमेजोन, ओके। सो मैं कंपोजिशन में नहीं आ सकता हूँ, समझ में आया? सप्लायर ऑफ गुड्स की बात चल रही है, ई कॉमर्स ऑपरेटर की बात नहीं चल रही है। क्लियर है? supplier of goods through e-commerce operator who is required to collect tax under section 50। अगर ऐसा ई कॉमर्स ऑपरेटर के आप सप्लाई करते हो जिसको टैक्स कलेक्ट करना है 52 में, सेक्शन 52 में, तभी आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। तो अब हम समझते हैं कि सेक्शन 52 में ऐसे कौन से सप्लाईज है जिनके ऊपर आपको टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टैक्स कलेक्ट करना पड़ता है। अब ये मैंने आपको दिया हुआ है पेमेंट ऑफ टैक्स के चैप्टर, टीसीएस का जो पार्ट होगा वहाँ पर आप देखोगे। तो अगर कंसिडरेशन एंड कंज्यूमर से कंसिडरेशन अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट करता है, नॉट सप्लायर, ध्यान देना, इफ ई कॉमर्स ऑपरेटर इज कलेक्टिंग कंसिडरेशन फ्रॉम कस्टमर इंस्टेड ऑफ सप्लायर, मतलब सप्लायर को डायरेक्टली जा सकता था ना कंसिडरेशन। फॉर एग्जाम्पल, देर आर टू पार्टीज, ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, हियर इट इज ए इज अ सप्लायर ऑफ गुड्स, हियर इट इज अ ई कॉमर्स ऑपरेटर वेबसाइट, एंड हियर इज अ कंज्यूमर. So if consumer is making payment to e-commerce operator and then e-commerce operator is discharging that amount to A, okay, then e-commerce operator is liable to collect TCS. उसको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा। पर अगर ये ट्रांजैक्शन कुछ इस तरह से हो, कंज्यूमर अगर डायरेक्टली इसको पे करता है पर बुकिंग इसके वेबसाइट से करता है, देन ECO इज नॉट लायबल टू कलेक्ट TCS। अगर आप ऐसे सप्लायर हो तो आप कंपोजिशन में आ सकते हो। बट अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर आपका TCS कलेक्ट करता है तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। इट वेरी क्लियर। ग्रीन वाला जो एरो है ना, इस केस में कंपोजिशन नहीं हो सकता, पर जो पर्पल वाला एरो है उसमें कंपोजिशन स्कीम में आप आ सकते हैं। इट वेरी क्लियर। कमिंग बैक टू द चार्ट अगेन, इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स। अब बात कर रहे हैं हम इन एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स की। ठीक है, सॉरी, ऊपर के पॉइंट में एक पॉइंट रहेगा, सर्विस अगर आप सप्लाई करते हो थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो कंपोजिशन स्कीम के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक, CGST अमेंडमेंट एक्ट 2020, उसमें दिया गया है कि यहाँ पर गुड्स की जगह पे गुड्स और सर्विसेज आ चुका है, बट इट इज़ नॉट येट नोटिफाइड, आपके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है। ओके, आपको सिर्फ यहाँ पर गुड्स ध्यान रखना है। सिमिलरली इन पॉइंट नंबर बी, इंटरेस्टेड सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विस ऐसा ऐड हो चुका है, बट इट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट। नेक्स्ट वन, एलिजिबल पर्सन सप्लाइंग सर्विस। अब ध्यान देना, एलिजिबल पर्सन मतलब सबसे पहला उसको कंपोजिशन स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना होगा। अगर वो कंपोजिशन स्कीम में है एंड वो सर्विस देता है अदर देन रेस्टोरेंट, ओके, तो उसका जो सर्विस का टर्नओवर है इट शुड नॉट एक्सीड 10% ऑफ टोटल टर्नओवर इन स्टेट फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर,
or 5 lakh, whichever is higher. 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर और 5 लाख विच एवर इज हायर से ज़्यादा वो सर्विस नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है आप लोग को? मतलब एंसिलरी सर्विस जो होती है वो इट शुड बी वेरी नॉमिनल। फॉर एग्जांपल, आपका टर्नओवर 10 लाख था पिछले साल, okay? पिछले साल आपका टर्नओवर 10 लाख रुपीज़ था प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो आप करंट ईयर में सिर्फ 5 लाख तक का ही सर्विस दे सकते हो अदर देन योर मेन सर्विस। 5 लाख कैसे आया? 10% ऑफ 1 लाख, 1 लाख, 10% ऑफ 10 लाख 1 लाख और 5 लाख विच एवर इज हायर, सो 5 लाख। क्लियर है? वेरी क्लियर। एलिजिबल पर्सन सप्लाइंग सर्विस अदर देन दिस। अब याद रखना, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, 10% किसका लेना है? 10% एग्रीगेट टर्नओवर का नहीं लेना है। यू हैव टू टेक द 10% ऑफ टोटल टर्नओवर इन द स्टेट। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं। यहाँ पर एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपको क्वेश्चन में दिया है, आपको उसको इग्नोर करना है। आपको टोटल टर्नओवर इन द स्टेट उसका 10% लेना है। ओके, नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ सर्विस अदर देन रेस्टोरेंट। फॉर एग्जाम्पल, आई एम आर्किटेक्ट सर्विस दे रहा हूँ मैं, तो मैं कंपोजिशन में नहीं आ सकता। ठीक है, तो मेरे लिए प्रिजम्पटिव स्कीम बनाया हुआ है सेक्शन 10 सबसेक्शन 2A में, हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एंड NRTP। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मीन्स अ पर्सन who is going to effect a transaction for certain period, occasionally transaction करता है वो, and that occasionally transaction should not exceed the time period of 180 days, 90 days plus 90 days है वो। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का आपको अगर एग्जांपल दूँ तो एग्जीबिशन। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड हूँ मेरे को दिल्ली में एग्जीबिशन है, सो दिल्ली में मेरे को फॉर द पीरियड ऑफ दैट एग्जीबिशन मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। CTP हैज़ टू पे एडवांस टैक्स, वो हम रजिस्ट्रेशन चैप्टर में देखेंगे। तो CTP कैन नॉट गो फॉर कंपोजिशन स्कीम, NRTP ऑल्सो कैन नॉट गो फॉर। NRTP मतलब जो पर्सन आउटसाइड इंडिया से आता है बिजनेस करने के। वेट अ सेकेंड, इनएलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स हुए? Ineligible manufacturers, sorry, ineligible manufacturers, there are few manufacturers, not traders, manufacturers which are ineligible for composition scheme. Those are tobacco, ice cream, pan masala and aerated waters. अगर आप इन सब चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग करते हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैन्युफैक्चर? मैन्युफैक्चर मीन्स डूइंग सच एन एक्टिविटी which will change name, character and use, name, character and use, नेम कैरेक्टर एंड यूज ऑफ एनी प्रोडक्ट, इट इज कॉल्ड एज मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप मैन्युफैक्चर करते हो ये सब आइटम्स तो आप कंपोजिशन में नहीं आ सकते। ठीक है, पर आप अगर ट्रेडर हो देन आप आ सकते हो कंपोजिशन स्कीम में। मैन्युफैक्चरर के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ट्रेडर के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द रेट ऑफ टैक्स। रेट ऑफ टैक्स की बात, अब मैन्युफैक्चरर जो है अदर देन टीपा, दैट इज टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला, एरेटेड वाटर, इनको छोड़ करके जो मैन्युफैक्चरर है उनको GST का जो रेट है कंपोजिशन स्कीम का रेट है। अब ध्यान रखना को ये जो रेट है, ये जो रेट है वो 9(1) के सब्सटीट्यूट में है, नॉट ऑफ 9(3). अब टैक्स कभी पे करता है कोई सप्लायर? जब वो सप्लाई करता है तब, या तो तब जब वो ऐसा सर्विस लेता है जो RCM में टैक्स पे करता है। तो दिस रेट्स आर फॉर फर्स्ट वन, दैट इज जब मैं सप्लाई कर रहा हूँ तब का रेट से 0.5, 0.5 एंड वॉट एवर वी आर गोइंग टू लर्न नाउ। सो यू हैव टू नोट वन important point. If you are purchasing such a service on which RCM is applicable, then this composition person has to pay tax at normal rates. At normal rates. Normal rates मतलब अगर composition person ने लॉयर का सर्विस लिया, इसका लिया लॉयर का सर्विस, देन उसके ऊपर एग्जाम्पल 18% टैक्स रेट है, तो 18% पे GST पे करना है, नॉट ऑन दिस 0.5% और 1%। क्लियर है क्या? आप जो सप्लाई करते हो, जो आपका आउटवर्ड है, उसके लिए ये रेट्स है, नॉट फॉर योर इनवर्ड RCM। होप दिस इज क्लियर। So manufacturer has to pay tax on 0.5% of total turnover in the state. CGST rate, SGST rate also same. तो टोटल रेट कितना हुआ? 1%. टोटल रेट कितना हुआ? 1%. टोटल रेट इज
एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। अभी अमेंडमेंट है। अब ये जो 1% है किसका लिया हमने, नॉट ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर, वी हैव टेकन द 1% ऑफ टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का 1%। टोटल टर्नओवर कहाँ का, इन द स्टेट। नाउ दिस टोटल टर्नओवर वुड इंक्लूड, एकदम ध्यान से सुनना, वुड इंक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाईज एज वेल, वुड इंक्लूड एग्जेम्प्ट सप्लाईज एज वेल। टोटल मतलब टैक्सेबल भी एग्जेम भी। पर इस एग्जेम्प्ट में आपको इंटरेस्ट का जो टर्नओवर है, यहाँ पर देखिए आप लोग अंडरलाइन कर रहा हूँ, सप्लाई बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग डिपॉजिट, लोन, इंटरेस्ट और डिस्काउंट, ये आपको ऐड नहीं करना है। इट्स वेरी क्लियर, आपको ऐड नहीं करना है टोटल टर्नओवर। तो इन सिंपल वर्ड्स, जो आप सप्लाईज कर रहे हो टैक्सेबल, उसके ऊपर आपको 1% पे करना है। जो आप एग्जेम्प्ट दे रहे हो उसके ऊपर भी आपको 1% पे करना है। पर अगर आप इंटरेस्ट डिस्काउंट अर्न करते हो उसके ऊपर आपको टैक्स पे नहीं करना। इज इट वेरी क्लियर? दिस इज द अमेंडमेंट फॉर दिस। रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइडर सेम, सर टोटल टर्नओवर इन स्टेट का परसेंटेज है, कितना परसेंटेज है, 2.5%, 2.5%। क्लियर है? तो अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो एंड आपको अगर कोई बिल देता है 0.25 सॉरी 2.5%, 2.5% वाला, तो क्या वो पर्सन कंपोजिशन में होगा? ध्यान ध्यान से क्वेश्चन सुनना, आप लोग आंसर करना, ठीक है? वीडियो देख रहे हो पर आंसर आपका आना चाहिए। इफ़ यू आर इन अ रेस्टोरेंट, दैट होटल सर्विस प्रोवाइडर इज गिविंग यू अ बिल ऑफ 100 रुपीज़ प्लस 2.5%, 2.5%, वेदर ही इज इन अ कंपोजिशन स्कीम और नॉट, क्या बोलोगे आप लोग का आंसर क्या होगा? 2.5 तो है ना इधर, 2.5, 2.5, क्या होगा आंसर? इज ही इन अ कंपोजिशन? आंसर इज नो। कंपोजिशन पर्सन cannot levy taxes, he has to pay tax। समझ रहा है? अगर वो 2.5% लगा रहा है मतलब वो नॉर्मल स्कीम में है, अगर वो कंपोजिशन में भी है एंड 2.5 लगा रहा है, सो इट इज रॉन्ग। क्लियर है? तो वो सेक्शन 32 में चला जाएगा, अनऑथराइज कलेक्शन ऑफ अदर सप्लायर्स। अब अदर सप्लायर मतलब क्या, अदर एलिजिबल सप्लायर। ध्यान देना, अदर सप्लायर का मतलब ये नहीं होता कि मैन्युफैक्चरर रेस्टोरेंट को छोड़ के, नहीं। अदर सप्लायर मीन्स अदर सप्लायर्स हु आर फुलफिलिंग द डिटर्मिनेशन ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को करते हैं उनको बोलते हैं हम अदर सप्लायर। अभी इसमें मेजरली ट्रेडर्स आते हैं, सो उनको किसके ऊपर पे करना है, 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। अब यहाँ पर बात टैक्सेबल आ गई, मतलब एग्जेम्प्ट के ऊपर 1 रुपया पे नहीं करना। क्लियर है? तो एग्जेम्प्ट के इंटरेस्ट पे भी पे नहीं करना उनको, एग्जेम्प्ट सप्लाईज के ऊपर ही पे नहीं करना। क्लियर है? 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज, 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन द स्टेट। एग्रीगेट टर्नओवर का परसेंटेज नहीं है, मैं रिपीट वापस से कर रहा हूँ, ऑल द परसेंटेजेस आर 0.5% जो भी है, टोटल टर्नओवर इन द स्टेट का है एंड टैक्सेबल सप्लाईज इन द स्टेट का है। पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटरमाइन करने में आपको एग्रीगेट टर्नओवर लेना है, पर पेमेंट ऑफ टैक्स में आपको टोटल टर्नओवर इन द स्टेट लेना है। इज इट वेरी क्लियर? नेक्स्ट वन, यहाँ पर जो नोट दिया है वो पढ़ो। और ABC, अब ये जो तीनों है इसमें खुद का जो सर्विसेज है, दैट इज खुद का जो गुड्स दे रहे हैं मैन्युफैक्चरर या रेस्टोरेंट या सप्लायर, वो लोग साथ साथ में 10% ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर इन स्टेट और 5 लाख विच एवर इज हायर तक का सर्विस भी दे सकते हैं अदर देन रेस्टोरेंट। इज इट वेरी क्लियर? हमने ऑलरेडी पीछे सीखा हुआ है, रिपीटेशन। अब कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करना पड़ेगा कंपोजिशन पर्सन को। कंडीशन क्या है देखना, जो दिन आप कंपोजिशन में जा रहे हो आपके पास ऐसा कोई भी गुड्स नहीं होना चाहिए अनरजिस्टर्ड से परचेस किया हुआ जिसमें आपने 9(4) में टैक्स नहीं भरा है। क्लियर है? नेक्स्ट वन, RCM शुड बी पेड एट नॉर्मल रेट्स, ये हमने ऑलरेडी सीखा हुआ। नॉट एंगेज इन मैन्युफैक्चर ऑफ नोटिफाइड गुड्स, ये भी सीखा हुआ है। ये 2 पॉइंट नए हैं। क्या नया पॉइंट है? पॉइंट नंबर 4 पॉइंट टू मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑल नोटिसेस साइन बोर्ड। अब आप अगर कोई कंपोजिशन पर्सन के शॉप में जाते हो, किराना शॉप या जो भी है, तो उसमें आपको ना एक बोर्ड देखने मिलता है, कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन। देखा होगा आपने तो ध्यान से, अगर नहीं देखा तो आप लोग देख के आओ। अगर उसने नहीं लगाया तो उसको बोल दो भाई लगा दो, मैं ये चैप्टर में सीखा है, आप लगा दो भाई। ये तो जनरल पेनल्टी भी है उसका। टू मेंशन नेक्स्ट पॉइंट, टू मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स सप्लाईज ऑन टैक्स इनवॉइस।
आई एम रियली सॉरी, यहाँ पर टैक्स इनवॉइस नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए बिल ऑफ सप्लाई। ओके, आप एडिट कर लेना, एक छोटा सा एरर है। बिल ऑफ सप्लाई यहाँ पर आएगा। क्यों? कंपोजिशन पर्सन टैक्स कलेक्ट करता ही नहीं है तो वो टैक्स इनवॉइस इशू कर ही नहीं सकता। ओके, तो कंपोजिशन पर्सन को जो इशू करना है एज पर सेक्शन 31(3)(b आई फील, तो सब सेक्शन में मिस्टेक हो सकता है पर सेक्शन 31(3) इज परफेक्ट। 31(3) के हिसाब से उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? बिल ऑफ सप्लाई इज इशूड इन 2 केसेस। नंबर 1, बाय कंपोजिशन पर्सन अगर सेल कर रहा है तो, या तो फिर एग्जेम्प्ट सप्लाईज आप कर रहे हो तो आपको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना पड़ेगा। ओके ओके, हियर वी कंप्लीट विद एंटायर कंपोजिशन। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम। अब आप इसको सेक्शन 10(2)(a) का स्कीम बोलो या फिर न्यू कंपोजिशन स्कीम बोलो, ऑल वन एंड द सेम। अब ये जो स्कीम है वो 1 अप्रैल 2019 के बाद से आया हो, मतलब ये पहले नहीं था। अब ये स्कीम है किसके लिए? तो ये स्कीम है किसके लिए? अब हम चेक करते हैं। एक ये फाइल में आ जाओ आप मेरे, सॉरी अपना बोर्ड पे आ जाओ। प्रिजम्पटिव स्कीम 10 सबसेक्शन। अब सेक्शन 10(2)(a) है, दिस इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विथ सेक्शन 10। 10(1) बोलो आप इसको। 10(1) इज अ कंपोजिशन स्कीम एंड 10(2)(a) प्रिजम्पटिव स्कीम। अब जो पर्सन कंपोजिशन में एलिजिबल है, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम में एलिजिबल है, ठीक है, दैट पर्सन दैट पर्सन कैन नॉट ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। क्लियर है? अगर आप कंपोजिशन में एलिजिबल हो आप ऑप्ट नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? आप एलिजिबल थे, आपने कंपोजिशन ऑप्ट नहीं किया तो भी आप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, इफ यू आर अ ट्रेडर, ठीक है, आपका टर्नओवर था ₹1 CR इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। आप बोलते हो कि भाई मेरे को प्रेजेंटिव स्कीम, चलिए सॉरी 1 करोड़ मत पकड़ो इसको, आप 10 lakhs पकड़ो, क्योंकि 50 lakhs से तो कम होना पड़ेगा ना अपने को। 10 lakhs इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। सो अब ये जो ट्रेडर है ये कंपोजिशन स्कीम में आ सकता है, एलिजिबल तो है, इसने लिया नहीं लिया वो अलग बात है। दिस ट्रेडर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ओके, सो स्ट्रेट अवे ही इज नॉट एलिजिबल फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम। इज इट वेरी क्लियर? अगर वो ऑप्ट नहीं करता तो उसकी गलती है। इफ ही इज जस्ट एलिजिबल then he cannot opt for presumptive scheme. I hope this point. So this scheme is mutually exclusive scheme. आइए देखते हैं इसका क्या कंडीशन। यहाँ पर मैंने सेकंड पॉइंट में जो अभी सीखा वो मेंशन किया हो। एज पर अमेंडेड रूल 7 ऑफ CGST रूल्स, जीएसटी का रेट है ये हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले कुछ कंडीशंस देख लेते हैं। तो कंडीशन क्या है? कंडीशंस आर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 lakhs क्रॉस नहीं, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उसका टर्नओवर 50 lakhs क्रॉस नहीं करना चाहिए। सेम जो डेफिनेशन हमने एग्रीगेट टर्नओवर की वहाँ पर पढ़ी, सेम इधर पढ़ेंगे। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर शुड नॉट एक्सीड 50 लाख रुपीज। अब इसमें आपको क्या एक्सक्लूड करना है? सेम वे CGST SGST एक्सक्लूड तो करना ही है पहले से, जो इंटरेस्ट डिस्काउंट का जो टर्नओवर है वो भी आपको एक्सक्लूड करना है। अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में 50 लाख से कम है तो आप आ सकते हो करंट ईयर में इन प्रिजम्पटिव स्कीम। ओके, तो प्रिजम्पटिव स्कीम इज बेसिकली फॉर सर्विस सप्लायर्स, क्योंकि सप्लायर ऑफ सर्विस को कंपोजिशन स्कीम से बाहर रखा हुआ। ओके, इसीलिए उनके लिए प्रिजम्पटिव स्कीम दिया हुआ। नेक्स्ट वन, सेक्शन 10 शैल नॉट बी एप्लीकेबल, ये हमने ऑलरेडी देखा। अब जो ये पॉइंट्स है यहाँ पर जो दिख रहे हैं, पॉइंट नंबर 3 से लेके पॉइंट नंबर 7 तक, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक एग्जांपल लेते हैं अपन नॉन टैक्सेबल गुड्स का। वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स। हमने क्या देखा था? जो पर्सन कंपोजिशन के लिए एलिजिबल नहीं है,
who is not eligible for composition, he can opt for presumptive. क्लियर है, ये हमने देखा. अब नॉट एलिजिबल का लिस्ट में हमने देखा कि नॉन टैक्सेबल गुड्स, जो पर्सन नॉन टैक्सेबल, स्क्रीन नहीं दिख रहा है, जो पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए है एलिजिबल, वो प्रिजम्पटिव के लिए नॉट एलिजिबल. तो कंपोजिशन के लिए जो एलिजिबल नहीं है, कौन नहीं है? नॉन टैक्सेबल गुड्स का जो सप्लायर है, नॉन टैक्सेबल गुड्स. तो अगर गवर्नमेंट ऐसा बोलती कि कंपोजिशन में जो एलिजिबल नहीं है वो प्रिजम्पटिव में ले सकता है, बस इतना ही बोलती, इतना ही बोलती, तो आप लोग सब जो इनएलिजिबल का क्राइटेरिया वो पूरा पूरा इधर आ जाता. पर गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रिजम्पटिव स्कीम के लिए भी कुछ कंडीशंस बनाए, और इस कंडीशन में लिखा कि आप भले यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो, पर फिर भी आप यहाँ पर नहीं, इवन इफ यू आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉन टैक्सेबल गुड्स, बट यू आर स्टिल इनएलिजिबल इन प्रिजम्पटिव स्कीम. क्लियर है? सेम गोस फॉर इंटर स्टेट सप्लाई. ध्यान देना, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. अब दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. कंपोजिशन स्कीम allows scheme allows interstate supply of service. क्लियर है? अप टू द लिमिट ऑफ दैट 10%. ठीक है, इतना अलाउड है. इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विस पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं अलाउड है. नॉट अलाउड में क्या है? व्हाट इज नॉट अलाउड? इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स. क्लियर है? दिस इज नॉट अलाउड इन केस ऑफ कंपोजिशन स्कीम. तो जो यहाँ पर एलिजिबल था वो तो स्ट्रेट अवे नहीं आ सकता, सो ये प्रिजम्पटिव स्कीम में वैसे भी नहीं आ सकता. क्लियर है? ये नॉट अलाउड है, तो ये आ सकता था अगर गवर्नमेंट कुछ ना बोलता तो. इफ गवर्नमेंट वुड हैव सेड नथिंग, then this person would have been eligible. But government has said that interstate supplier of goods is not eligible. अब यहाँ पर लिखा क्या उन्होंने पता है? गुड्स भी एलिजिबल नहीं है, सर्विस भी एलिजिबल नहीं. बट सर्विस अगर वो ना भी लिखते ना तो भी एलिजिबल नहीं होता. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. क्योंकि कंपोजिशन में एलिजिबल हो तो प्रिजम्पटिव के लिए तो वैसे भी इनएलिजिबल थे आप जिसके लिए एलिजिबल नहीं थे कंपोजिशन में उसके लिए ही गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन देना चाहिए. तो इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए दिया होता तो हम समझ सकते हैं, पर गवर्नमेंट ने सेफर साइड पे इंटरस्टेट सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों लिख दिया. दिस बोथ पर्सन आर स्टिल फॉर स्कीम. होप यू आर क्लियर. नॉन टैक्सेबल गुड्स नहीं बेच सकता है, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. इंटरस्टेट सर्विस और गुड्स बोथ नॉट अलाउड. टीटीपी एनआरटीपी नॉट अलाउड. नॉट सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर. अब यहाँ पर ध्यान दो, कैनॉट सप्लाई बोला मतलब गुड्स हो चाहे सर्विस हो, आप कुछ भी नहीं दे. नो सप्लाई ऑफ टोबैको, आइसक्रीम, पान मसाला. नॉट इवन ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग वॉज ऑलरेडी एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, तो ऐसे भी इधर नहीं आना है. बात चलती है मैन्युफैक्चर की, तो मैन्युफैक्चर उधर एलिजिबल नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर आ सकता है कि आंसर इज स्टिल नो. बाय बिकॉज एनी सप्लाई इज होप इट इज. ओके, क्लियर है पूरा? अब ध्यान दो, प्रिजम्पटिव स्कीम में रेट ऑफ टैक्स क्या होगा? प्रिजम्पटिव स्कीम में रेट ऑफ टैक्स इज 3% CGST, 3% SGST. ध्यान देना, 3% 3% CGST, 3% SGST of taxable supplies, not total turnover, of taxable supplies in the state. taxable supplies in the state, उसका परसेंटेज रहेगा. सेम अपना जो ट्रेडर के लिए अपन ने देखा ना 0.5%, 0.5%, सिमिलरली यहाँ पर 3%, 3% ऑफ टैक्सेबल सप्लाइज ऑफ दिस कंसेप्ट. सो दिस कंसेप्ट जो हम अभी सीखने वाले हैं, इट इज एप्लीकेबल फॉर बोथ, इज एप्लीकेबल फॉर
कंपोजिशन के लिए भी ये वाला सिस्टम है वो एप्लीकेबल रहेगा, प्रिजम्पटिव के लिए भी रहेगा, दोनों के लिए एप्लीकेबल। पहले सिर्फ प्रिजम्पटिव वाले के लिए हुआ करता था, बट द एक्सप्लेनेशन हैज बीन इन सेक्शन 10, इट मीन्स वो एक्सप्लेनेशन इज एप्लीकेबल फॉर एंटायर सेक्शन, इसके लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। यहाँ पर हम प्रिजम्पटिव स्कीम की बात करते हैं। अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में कोई फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर था, प्रीसीडिंग ईयर इफ यू हैड टर्नओवर, तो अगर आपका 50 लाख से कम था, तो आप प्रिजम्पटिव में आ सकते थे। क्लियर है? तो ये वाला यहाँ पर, अगर आपका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर नहीं था, तो योर फर्स्ट सप्लाईज शुड नॉट एक्सीड ₹50 लाख। योर फर्स्ट सप्लाईज शुड नॉट एक्सीड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फर्स्ट सप्लाईज? फर्स्ट सप्लाईज मीन्स अप्रैल से लेकर के, ध्यान देना, अप्रैल से लेकर के जब तक आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाते, अप्रैल से लेके एग्जाम्पल सितंबर तक आपका टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हुआ, इफ योर टर्नओवर डिड नॉट एक्सीड ₹20 लाख फॉर दिस पीरियड, और 20 लाख का एक्सीड हुआ अपना अक्टूबर 1 से, तो दिस टर्नओवर इज लेस देन ₹50 lakhs, ओके, अकॉर्डिंगली यू कैन ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव स्कीम 1 अक्टूबर। वेरी क्लियर? अब यहाँ पर ना एक सोचने वाली बात ऐसी है, मेरा रजिस्ट्रेशन का लिमिट जो है 20 लाख रुपीज़, ऑब्वियसली क्योंकि प्रिजम्पटिव इज अवेलेबल फॉर सर्विसेज, तो हम 20 lakhs को थ्रेशोल्ड लिमिट पकड़ के चल रहे हैं। तो डेट ऑन विच लायबल टू बी रजिस्टर्ड, डेट ऑन विच आई एम लायबल टू बी रजिस्टर्ड, लायबल टू बी would always be the date when I cross the turnover of 20 lakhs, एंड जो दिन मैं टर्नओवर क्रॉस करूंगा 20 lakhs, इसका मतलब है कि मेरा टर्नओवर ऑब्वियसली 50 लाख से कम है, तो हमेशा तो ऐसा ही आएगा ना ये आंसर, इज समथिंग वेग, ऐसा आपको लग रहा है कि नहीं, बताओ मुझे। योर फर्स्ट सप्लाई शुड बी लेस देन 50 लाख, इट इज बट ऑब्वियस कि हमेशा 50 लाख से कम ही रहेगा, क्योंकि मेरा डेट ऑफ लायबल टू बी रजिस्ट्रेशन इज ऑन टर्नओवर एक्सीडिंग ₹20 लाख। तो वाई दिस इज मेड इन दिस मैनर, अब ये समझते हैं। दिस इज समथिंग आउट ऑफ बॉक्स। आप लोग स्क्रीन पर आ जाओ, आप लोग को नहीं। सपोजिंगली अप्रैल में मैंने मेरा सर्विसेज चालू की, फॉर एग्जांपल आई हैव स्टार्टेड माय सीए प्रैक्टिस, अप्रैल से मैंने चालू की, अप्रैल में चालू किया, एंड अब आ गया है अक्टूबर, ये का प्रैक्टिस चालू। ध्यान से एक बात को, अजम्पशन ले रहा हूँ, इट इज़ नॉट एक्चुअल, इट इज़ जस्ट अजम्पशन। सीए सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ये सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट, ऐसा गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन, ये सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। और अब आपको एक चीज़ इंटरलिंक करना पड़ेगा, एज पर सेक्शन नंबर 23 एग्जेम्प्ट सप्लायर्स आर नॉट लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। क्लियर है? अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लायर हो, इफ यू आर एग्जेम्प्ट सप्लायर ऑफ सर्विस, देन यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू टेक रजिस्ट्रेशन, ओके। So from April to October, I have not taken registration, and my turnover is ₹55 lakhs. How much is my turnover? ₹55 lakhs. कितना turnover है? 55 lakhs. I have not taken registration. But suddenly in October, government issues one notification which says that CA services would be taxable. ध्यान देना, CA services would be taxable with effect from 1st October. CA services are going to be taxable with effect from 1st October. यहाँ पर ना मैं सितंबर, from April to September, my turnover was ₹55 lakhs. From 1st October, CA services became taxable. For April to September, it was not taxable. So the date on which I am liable to be registered is on 1st October. So what is my first supplies? My first supplies is from April to September. So my April to September ka turnover is exceeding ₹50 lakhs. Is it very clear? It is exceeding ₹50 lakhs. 20 lakhs तो छोड़ दो, 20 lakhs is not
a matter of discussion, because your services were exempt when you are providing services of rupees 20 lakhs. It has only become taxable when your turnover has exceeded rupees 50 lakhs. Government has issued that notification. So in this case, your first supplies exceeds rupees 50 lakhs, you are ineligible. You are ineligible for presumptive scheme. I hope this point is clear now. Very clear. So this is the logic of government. Okay. ऐसा हमेशा मत समझना कि आपका लायबिलिटी टू रजिस्ट्रेशन 20 लाख के ऊपर ही आता है. जब आप एग्जाम सर्विस करते हो तब आता है जब आपका एग्जाम सप्लाईज टैक्सेबल हो जाए. क्लियर है? सेम ये एग्जांपल मैंने आपको दिया यहाँ पर. Now let us chart once again. Okay. So this is very clear. अब पेमेंट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट्स की बात करते हैं. पेमेंट ऑफ टैक्स का ड्यू डेट इज 18th ऑफ मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर. फॉर एग्जांपल अप्रैल टू जून है. अप्रैल टू जून का पेमेंट मुझे करना है 18th जुलाई तक. कब तक करना है? 18 जुलाई तक. एंड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग CMP 08 इज ऑल्सो द सेम. CMP 08 आपको फाइल करना पड़ेगा और पेमेंट करना पड़ेगा. अगर रजिस्ट्रेशन पेमेंट ऑफ टैक्स कौन से अमाउंट पे होगा ध्यान देना. अगर आपका रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल से वैलिड था तो 1 अप्रैल से लेकर के आपने उस क्वार्टर में जितना भी सेल किया, जितना भी सर्विसेज दिया, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है. एंड यहाँ पर ना आप चेंज कर दो. आई हैव फॉरगेट टू चेंज ओवर ईयर. यहाँ पर टैक्सेबल आएगा. जो अमेंडमेंट रूल 7 में हुआ ना वो यहाँ पर भी अप्लीकेबल. सो हियर इट शुड बी टैक्सेबल. रियली सॉरी फॉर दिस मिस्टेक. 3% ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज. अगर आपका रजिस्ट्रेशन बिटवीन द ईयर हुआ है, अगर आपने एग्जाम्पल रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर से लिया कि प्रिजम्पटिव में, तो 1 सितंबर के बाद से जितना भी आप सप्लाई करोगे उसके एट द रेट ऑफ 6%, दैट इज 3. अब कुछ कंप्लायंस का पार्ट देखते हैं अपन. रिटर्न फाइलिंग. रिटर्न फाइलिंग GSTR 4 बाय 30th अप्रैल. GSTR 4 30th अप्रैल तक करना. मैंने ये स्टार्टिंग में ही डिस्कशन, आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट एट द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग यू टू दिस. पेमेंट ऑफ टैक्स क्वार्टरली करना है, ये भी हमने अभी ऊपर देख लिया. सम कॉमन पॉइंट्स फॉर प्रिजम्पटिव एंड कंपल्शन पर्सन. ITC कैनॉट बी अवेल्ड, ये हमने ऑलरेडी देखा. टैक्स कैनॉट बी लेविड. ओके. इश्यूज बिल ऑफ सप्लाई वी हैव ऑलरेडी सीन. You have to mention, you have to mention composition taxable person not eligible for collecting tax on your bill of supplies. That is documents to be issued. Presumptive वाले को ये mention करना है. अब important part. If you are switching over, if you are switching over to presumptive scheme or composition scheme, then the balance of ITC on the stock has to be reversed. Let us discuss this point. There is some important thing in this point. Now we are on the board, right? Supposingly 1st April 2020, from here to 30th September 2020, I was in a normal scheme. I was in a normal scheme. I used to pay tax by collecting GST from the recipient and I used to avail ITC. Okay. And I am going to opt for composition scheme from 1st October. 1st October से मैं जा रहा हूँ स्कीम में. तो 30th सितंबर के दिन पे ऊपर 30th सितंबर के दिन पे जो मेरे पास स्टॉक था उसके ऊपर जो ITC का अवेलेमेंट मैंने किया हुआ है रिटर्न फाइल करके, उतना मेरे को रिवर्स करना पड़ेगा. द रीज़न इज बिकॉज दिस स्टॉक इज गोइंग टू बी सोल्ड व्हेन यू आर इन कंपोजिशन स्कीम. मतलब गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू रिसीव टैक्सेस एट द रेट ऑफ हायर रेट, दैट इज 18% 12% पे आप पे नहीं करने वाले हो. आप मामूली 1% पे करने वाले हो. गवर्नमेंट सेज द ITC विच आई गेव यू टू सेल दिस गुड्स एट हायर रेट, that I am taking back. Is it very clear? So the day from when you are switching to these schemes, to these concessional schemes, you have to reverse the credit. Now we are back to the PDF.
One PAN can have only one registration that is presumed to are normal. It means if in Maharashtra you are composition registration, okay. So in Gujarat you cannot be for normal registration, okay. In Gujarat also you have to go for composition registration provided your aggregate turnover is less than rupees 1.5 CR. ये सब टर्नओवर का आपको करना ही पड़ेगा कंप्यूटेशन. One important point, if this is Maharashtra and this is Arunachal Pradesh, okay, Arunachal Pradesh. So what aggregate turnover you will check? 75 lakhs or rupees 1.5 CR? The answer is you are going to check the aggregate turnover as 75 lakh rupees. Why? Because one of your state is a special category. It's very clear. If any of your state becomes your special category state, the aggregate turnover will be of that special category state. Clear? Composition person not to maintain stock and tax details. We have already discussed. If in current year your turnover exceeds the specified limit, then you have to switch over to the normal scheme. Okay. Next one, if you have wrongly availed the composition scheme or presumptive scheme, then a section 73 and 74 will be attracted. That is adjudication will be taken 3 years and 5 years का जो भी time period है, it will be applicable. Clear है? Here we complete with the composition provisions. Now we will check with two questions I have mentioned in this chart. Mr. Ram, a registered person, Mr. Ram, a registered person, has provided following supplies in the current year. Ram has provided a registered person. He is normally registered. Okay. Has provided following supply in the current year or requested to answer. Turnover in the state if he is a manufacturer, trader or restaurant service provider, and tax liability. अब ये details है. Taxable supplies. Okay. Interest earned. Taxable supplies, interest earned. Sale of exempted goods. Exempt service by way of agriculture produce. Okay. So in this case उसको GST liability हमें निकालना है उसका. Considering he as a manufacturer in case 1, trader in case 2, and a restaurant in. So in simple words, if I say for manufacturer and restaurant service provider, the total turnover in state will be same. The rate of tax is different. Okay. For trader, it is a taxable supplies altogether. Okay. And exempt supplies by way of interest discount is excluded from all the 3 persons turnover. Is it very clear? So by considering these 3 thumb rules, we are going to solve this question. Taxable supplies. For trader, we will write M, T and R. Okay. M, T and R. Manufacturer, trader, restaurant. Manufacturer, trader, restaurant. Manufacturer, trader, restaurant. Taxable supplies has to be added in all this person turnover. बरोबर है? Interest earned, it has not to be added in any of these turnover. Sale of exempted goods has to be added in case of manufacturer and restaurant provider, but not in case of trader. Exempt service by way of loading, exempt service है तो मैन्युफैक्चरर में तो ऐड होगा, रेस्टोरेंट में भी ऐड होगा, पर ट्रेडर में ऐड नहीं होगा क्योंकि टैक्सेबल सप्लाईज के ऊपर टैक्स पे करना है उसको. परचेज ऑन विच टैक्स हैज टू बी पेड अंडर रिवर्स चार्ज. आरसीएम में टैक्स पेमेंट करना है तो रेट ऑफ टैक्स क्या लगेगा? नॉट 0.5 0.5 और 2.5 2.5. रेट ऑफ टैक्स विल बी द नॉर्मल टैक्स रेट. क्लियर है? और तीनों के टर्नओवर पे उसको तीनों के टर्नओवर पे ऐड होगा. टर्नओवर में इन द सेंस अलग से टैक्स हम ऐड करेंगे, आउटवर्ड सप्लाई के टर्नओवर में ऐड नहीं होगा क्योंकि ये इनवर्ड आरसीएम है. ठीक है. सो अकॉर्डिंगली द आंसर इज अराइव्ड ऑफ दिस क्वेश्चन. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. अब ये क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको एलिजिबिलिटी निकालना है. ध्यान देना.
महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड पर्सन है, महाराष्ट्र है मतलब मेरे को 1.5 CR का लिमिट देखना है। एलिजिबल है कि नहीं चेक करना है मुझे 1920 में। ये जो डिटेल्स दिया हुआ है आपको ये 1819 का, दिस डिटेल्स आर ऑफ 1819 एंड आई हैव टू चेक द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन 1920। पिछले साल का डेटा है अपने पास, ठीक है। क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है चेक कर लेते हैं अभी। ऑल टैक्सेबल ऐड करेंगे, बराबर है। इनवर्ड RCM ऐड नहीं करेंगे, क्लियर है। आउटवर्ड RCM है, आउटवर्ड RCM आई विल ऐड इट। और क्या ऐड करूंगा मैं, एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी ऐड करूंगा, बट नॉट इंटरेस्ट वाला टर्नओवर, क्लियर है, ठीक है। GST कंपोनेंट इफ इट इज एडेड देन आई विल रिड्यूस, इफ इट इज नॉट एडेड देन आई विल इग्नोर, क्लियर। चलो स्टार्ट करते हैं। टर्नओवर इन स्टेट, यस इट हैज़ टू बी एडेड। इंटरस्टेट सप्लाई, यस इट हैज़ टू बी एडेड। इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड नहीं हुआ है तो मेरे को इग्नोर करना है, आई हैव टू इग्नोर इट, क्लियर है। GST कंपोनेंट इज इंक्लूडेड, जो 85 लैक्स यहाँ पर दिख रहा है ना आपको, 85 एंड 45 इसमें इंक्लूडेड है, तो यहाँ से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। अगर यहाँ पर लिखा होता नॉट इंक्लूडेड तो मैं यहाँ पर इग्नोर करता। सेल ऑफ एग्जेम्प्टेड गुड्स, येस आई हैव टू ऐड इट। एग्जेम्प्ट सर्विस, येस आई हैव टू ऐड इट। Supplies on which tax is paid by recipient, it means A has not paid the tax, recipient has paid tax, and it is not included, so I have to ignore this. Purchases on which tax is paid by Mr. A under reverse charge, really sorry, again point number 7 पे वापस से आ जाओ। Supplies on which tax is paid by recipient, मतलब मैंने ऐसा सर्विस दिया है, आई हैव गिवन सच सर्विसेज ऑन विच माई रिसिपिएंट हैज पेड टैक्स, इट मीन्स इट इज अ आउटवर्ड RCM, so it will be added, okay, clear है। it is a case of outward RCM, so it has to be added। Purchases on which tax is paid by A, it means this is a reverse charge, so I have to ignore this one, so accordingly the answer is arrived। It's very clear now। I hope you have enjoyed this lecture। if you have enjoyed this lecture please like। अब यहाँ पर ना एक B पॉइंट है जिसमें क्या लिखा हुआ है, कितना तक वो सर्विस दे सकता है, हाउ मच सर्विसेज ही कैन। So it is 10% of the aggregate turnover or 5 lakh, whichever is higher। Here we end with this chapter। Thank you very much for listening to me patiently, and we will meet in the lecture very much।